Matters to be raised with the permission. 0 hour. Sri Digvijay Singh ji. माननीय सभापति महोदय, अनेक स्टडीज जो हुई हैं विश्व में, उसमें ये बात सामने आई है कि फेक न्यूज़ आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है और फेक न्यूज़ के कारण कई उदाहरण ऐसे हैं जहां सांप्रदायिक दंगे हुए, फसाद हुए, जिसकी वजह से पूरे समाज को आज पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया। माननीय सभापति महोदय, आज ट्विटर हैंडल पर और भी अनेक सोशल मीडिया साइट्स पर झूठे किस्म के नाम लेकर वे इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं जिसका मैं उल्लेख यहां नहीं करना चाहता। और हमें इस बात का दुख है कि कई ऐसे व्यक्तियों को फॉलो बड़े बड़े लोग करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे मंत्रिमंडल से और माननीय प्रधानमंत्री से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री जी से, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाया जाए और जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको बाध्य किया जाए कि इस तरह के अभद्र भाषा का उपयोग वो ना करें और जहां भी जिस प्रकार से भी सांप्रदायिक विष फैलाने का जो प्रयास किया जाता है उस पर वो अंकुश लगे, ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। सबको नोट करवाना सिर्फ आएगा। प्लीज, this issue raised by Digvijay Singh ji is very important, but at the same time you need to evolve a consensus. Otherwise, the moment you say something like that, then the others will start saying freedom of expression को ये रोक रहे, यह है वो है। इसलिए थोड़ा आपस में चर्चा करें, सब लोग मिलकर अच्छा होगा। Made an initiative where they have brought a regulatory act against such postings and particularly against the Facebook and the Twitter handle. Information is always useful. Of course, social media provides information, but at the same time, information, please, आप क्यों ऐसे commentary कर? Information with confirmation is more than an ammunition. But information without confirmation will create a lot of other problems also. Yes, I agree with you. Sri N. Gokula Krishna. Sri N. Gokula. Sir, I just wanted to ask Mr. Devji, reservation of You can't ask 25% seats if he to the... wanted to give the right of censorship to Facebook and Twitter, No, no. because that's a very important question. Okay. the You can't ask a question. Sri Gokula Krishna, please. Sir, the people No, you of please Puducherry- interact with each other, nothing wrong, and exchange ideas and then try to evolve a consensus. That's what I said. So that it will be easy for the government to think on those lines. Very important matter, which is educating the society. The people of Puducherry, particularly the youth and students, are agitated that the demand for reserving 25% of the seats in all the courses offered by Pondicherry University to the natives of Puducherry has not been considered favorably by the Government of India, though the academic session 2019-20 is about to commence. Initially, Pondicherry University reserved 25% to 8 courses in the beginning, which increased to 18 subsequently. A subcommittee appointed by Pondicherry University examined the issue and recommended a uniform reservation of 25% seats in all courses. This was accepted by the Academic Council in the year 2013-14 and was ratified by the Executive Council too. However, the then Vice Chancellor, instead of implementing the decision of the Executive Council, referred it to the Centre. Sir, reservation in central institutions to the locals is not a new phenomenon. In Pondicherry, the National Institute of Technology has reserved 50% of the seats to the Union territories. JIPMER, another prestigious medical institution, has been reserving 25% seats since its inception in 1964. Therefore, denial of a similar provision is not only against natural justice, but is clearly arbitrary and discriminatory.
Sir, the government of Puducherry has offered over 700 acres of land to the Central University and continues to provide logistic support in the form of electricity, transportation, water supply, etc. to 5,000 art students and staff of the university. Such a situation should be prevailing in all the states having central universities in India. Sir, in this background, what we demand is not a concession but a matter of moral obligation. Reserving 25% of seats to the residents of Central University can be extended to all the 48 central universities in India, and that would be certainly hailed as the righteous move by people everywhere. Sir, by raising this matter, I plead to arouse the collective consciousness of members from Right. rest of India for realizing a just demand that would satisfy the native students and youth. Certainly, the central government stands to gain laurels from the public. Thank you. Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. सर, मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और वो विषय गेमिंग एडिक्शन के बारे में है. This special mention is about the dangerous situation arising out of the increasing addiction of online gaming amongst the children. Sir, with Nothing shall online go on gaming record. being Any extremely member has got fascinating, anything, they should come and discuss highly at the table interactive and of his influential, or with the it chairman has if it's become the necessary. center of attraction That for too, the if it is children. necessary. Raising in the house like that, everybody standing up is not advisable. You are a senior member, please sit down. Sir, with online gaming being extremely fascinating, highly interactive and influential, it has become the center of attraction for children between the age group of 5 and 7, regardless of their geographical location or family background. Sir, it is a welcome thing that children today aspire to become game developers or game designers. I believe these games, if played responsibly and age appropriately, prove to be beneficial and highly effective. There is no doubt about it. However, in the current scenario, with no delimitations or laws in place, they are proving to be extremely harmful because they seem to be providing an entry point into the ugly underbelly of society, leading to abuse and addiction, very unfortunately. There are studies that show that most popular games played by children are age inappropriate, addictive, unsafe, sexually explicit, You have and to extremely speak. violent. You have to speak. Vinayji, Yeah, you are yeah. not supposed to read. With- You are capable of speaking I know, without I even know, seeing. I am aware of it. With rise, sir, basically the fact that I am trying to bring to the notice of this house is that there are students who are involved in gaming for 14 hours a day, and there have been violent clashes. In fact, very recently there was a case of a murder by a younger brother in a family of the elder brother, simply because the elder brother objected him and warned him about his addiction about gaming. And therefore, what I am pleading through you, sir, is that it is essential to formulate guidelines on online games so as to help users select and understand the game and its impact, and moreover make it safe for children. Sir, there are guidelines in other countries also. For example, China, you are not allowed to depict blood insofar as the online gaming is concerned. In Australia, about 220 games have been banned. In South Korea also, students especially are not allowed to use gaming below the age of 16, and there are restrictions about the time also, sir. And therefore, I am pleading with this humble mention here in the 0 hour that the government comes out with some safety guidelines for children. They need to be children-centric, no doubt about it, but at the same time, the general social conditions also have to be kept in mind, and also the kind of vitiation of atmosphere in the families that is happening. Family relationship is getting affected very Thank you. severely, and therefore this is a Thank humble you, Sri submission. Satish Chandra Misra ji. धन्यवाद चेयरमैन साहब. आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड है कि शेड्यूल्ड कास्ट कौन होंगे और किस तरीके से होंगे. उसमें एक प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जब जारी होगा 341 में, उसमें जो लिस्ट में नाम है वो शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में माने जाएंगे. 341 सब क्लॉज 2 में ये प्रोहिबिशन डाला गया है कि जो लिस्ट 341 में जारी हुई है प्रेसिडेंट के थ्रू, उसको कोई भी टिंकर नहीं कर सकता, कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, सिवाय
जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरी करते हुए पार्लियामेंट को ये पावर दी गई। इवन प्रेसिडेंट कैन नॉट मॉडिफाई हिज ओन नोटिफिकेशन ऑन हिज ओन। ये प्रोहिबिशन है आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 में। उत्तर प्रदेश में 17 जातियां जो हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट बनी हुई है, जिसमें उनको अदर बैकवर्ड क्लास का बेनिफिट मिलता है और रिजर्वेशन से लेके हर चीज़ में, उसमें वो सम्मिलित हैं। उन अदर बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट में 17 जातियां हैं, उनके बारे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी की नेता ने भी, हम लोगों ने भी यही हाउस के अंदर कई बार इस बात को रेस किया, और जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब यहाँ पर रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि आप संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इनको 341 सब क्लॉज 2 के तहत में इनको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में डालें, लेकिन उसी के अनुपात में उसका कोटा भी बढ़ाने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है अभी 3 दिन पहले, और उस सरकार ने उस आदेश के तहत इन 17 जातियों को ओबीसी की लिस्ट से हटा दिया, और हटा करके कहा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कि इनको आप शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट्स दे दीजिए और इनको जारी कर दीजिए। ये आदेश जो है पूरा का पूरा आदेश गैर संवैधानिक तो है ही है, लेकिन ये इन 17 जातियों के साथ पूर्ण रूप से धोखा है, और वो इसलिए धोखा है क्योंकि अब ये 17 जातियां उस ओबीसी से भी हट गई। अब ओबीसी से जब हट गई तो उनको ओबीसी के लाभ नहीं मिलने वाले हैं, और शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में ये आ नहीं सकते जब तक 341(2) के तहत में इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। इस तरह की प्रक्रिया पिछली सरकार में भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें माननीय न्यायालय में भी मामला गया था, उन्होंने स्टे भी किया था, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, हो ही नहीं सकता। ये पावर हम पार्लियामेंट की यूसर्प नहीं की जा सकती स्टेट के द्वारा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, आज जो लीडर ऑफ द हाउस है वही मंत्री भी है उस विभाग के, कि हमारी डिमांड ये है कि इन 17 जातियों के संबंध में आप शीघ्र संवैधानिक प्रक्रिया अपना करके इनको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में लाने का काम करें, और 341(2) के तहत में। लेकिन साथ साथ में आप उत्तर प्रदेश की सरकार को एक एडवाइजरी जारी करें और कहें, क्योंकि अधिकार हम लोगों का है, और उनसे कहें कि इस आदेश को, जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आदेश उन्होंने जारी किया है, उसको वो तुरंत वापस करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान इन 17 जातियों के लोगों को हो रहा है। और जब ये प्रोविजन लेकर के आए इनको जातियों को लाने का, तो उसी के अनुपात थैंक यू। ये उनका रिजर्वेशन का रिकॉर्ड ठीक है भाई, उसके टाइम पे बाद में है, कोई बोलेगा तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं ठीक नहीं, ये अभी बहस नहीं हो रहा है। 0 आवर में सबमिशन बहस नहीं हो सकता है। ये श्री रामनाथ ठाकुर, he raised a relevant point. Minister has taken note of it. Let us wait. महोदय, मैं इस शून्यकाल के माध्यम से मैं सदन के ध्यान We can't में make ऐसे allegation विषय को against state लाना government चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, हमारे देश में हर छोटे बड़े शहर की गली गली में कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। कोचिंग उद्योग लगातार बढ़ रहा है। मई में सूरत शहर में एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई, कई मासूम बच्चे इसमें जलकर मर गए। राजस्थान का कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रयास करने वाले छात्रों का केंद्र है। देश भर से छात्र यहां अध्ययन करने के लिए आते हैं, लेकिन हालत यह है कि कोटा में निरंतर छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं समाचार पत्रों में छपती रहती है। पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव के चलते तनाव उन पर इतना हावी हो जाता है कि इस प्रकार पढ़िए मत रामनाथ जी, मेरे ओर देख के थोड़ा मेरा चेहरा भी देखते रहिए बीच में, और बोलिए। समाचार पत्रों में छपती रहती है, पढ़ाई में अच्छा करने के दबाव के चलते तनाव उन पर इतना हावी हो जाता है कि वे इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। अभी हाल ही में NSSO ने अपनी पत्रिका में यह आंकड़ा प्रकाशित किया है कि लगभग 25% छात्र अर्थात 7 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं। कोचिंग चलाने वाले लोगों को छात्रों की सुविधाओं की चिंता बिल्कुल नहीं है। कितनी जगह में कितने बच्चे हों, कितनी फीस ली जाए, क्या बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिले, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। मांग क्या है, सुझाव क्या है? इसलिए यहाँ आवश्यक है कि उन्हें विनियमित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नियामक तंत्र स्थापित की जाए। सेफ एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अन्य व्यवसाय के रूप में इसे शामिल कर
इसके साथ न्याय नहीं हो सकता। देश की इतनी बड़ी आबादी के हितों के साथ इस तरह खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। ये मनमानी फीस वसूलते हैं, इस पर कम टैक्स देते हैं तथा यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़कर जाना चाहता है उसका पैसा भी वापस नहीं करते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कोचिंग से जुड़े सभी विषयों को समाहित करते हुए एक व्यापक विधान बनाया जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय न हो। एसोसिएट श्री टी.के. रंगराजन, श्री टी.के. रंगराजन। Thank you, sir. Sir, through you, I seek to draw the attention of the government and the entire House to the most destructive decision of the Railway Ministry, Corporation of Railway Production and Railway Printing Press also. The production unit of railway infrastructure by way of supplying locomotive, wagon, coaches and rolling stock requirement beside the maintenance of service Rangarajan infrastructure. ji, 1 Sir, minute. they have, Please address the chair, do not read, because some members are also objecting and rules also sir, do not permit. now allow me, I have the points here. No, I have no problem. You cannot read, that's what I'm saying. Sir, they have rendering the efficient service. That the corporate, if you make them corporate or privatize, it will affect the service and finally it will hand it over to private sector and corporate sector and foreign investment. Same way, the printing press also, they wanted to close and they wanted to send it to privatization. Railway is a huge department which they are supplying everything from their printing press. If you do all these things, finally what will happen? The reservation for OBC, SC, ST will die because the Companies Act does not provide your reservation. The private sector, they don't provide reservation. So finally, you wanted to close the reservation in this country. If you close the reservation, basically the poor people of BC, OBC, SC, ST will be affected. I request you not to go with the privatization. Okay. Thank you. So, Yelamar and Karim, name will be there officially. One word, Others sir. will, One others word, will sir. join. One word. Please. One Please. word, sir. Sri. One word. The railway production unit in Raebareli and Chittaranjan locomotive workers are on strike raising this issue. Right. Sri Viswambar Prasad Nishad. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 0 आवर में अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मानव बुंदेलखंड में इस समय से वर्षा न होने के कारण किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। क्योंकि वर्षा आधारित खेती है, वहाँ का किसान आत्महत्याएं कर रहा है और जो भी फसल होती है तो मानव वहाँ अन्ना प्रथा, जो गाय और सांड और जंगली जानवर है उसको ख़त्म कर देते हैं। प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है कि फसलों को, किसानों की फसलों को गायों से, सांडों से बचाया जा सके। हम लोग लगातार मांग करते चले आ रहे हैं, तो वहाँ का किसान पलायन करके बाहर जा रहा है और वहाँ पर बालू खनन जो होता है मानवर, तो वहाँ मजदूरों को जो काम मिला करता था, वहाँ नदियों का जाल है, बालू खनन बड़े पैमाने पर होता है, तो पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन होता है, जिसके कारण वहाँ के मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो हमारी मांग है मानवर कि वहाँ पर जो जंगली जानवरों से और गायों से, सांडों से जो किसानों की फसल नुकसान हो रहा है, उसको बचाने का इंतजाम किया जाए। प्रदेश सरकार कुछ व्यवस्था कर रही कि हम गौशालाएं बनाएंगे, लेकिन गायों से ज़्यादा वहाँ सांड है। अगर गौशाला बनाए तो सांडशाला भी अलग से बनाएं। वहाँ इतने ज़्यादा सांड हो गए हैं कि उनसे लोग परेशान हैं। सांड लोगों को मार देते हैं, तो तमाम लोग सांडों के उससे आक्रमण से मर गए हैं। तो आपसे हम विनती करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ फसल बीमा में जंगली जानवरों से, पशुओं से जो हानि होती है, फसल बीमा में उसको आच्छादित नहीं किया गया। तो हमारी सरकार से मांग है कि
किसानों की फसलों का जो नुकसान होता है तो फसल बीमा उसको आच्छादित किया जाए और बुंदेलखंड के किसानों के लिए जो है अतिरिक्त वित्तीय सहायता, वहाँ जो किसान पलायन कर रहा है, भुखमरी से मर रहा है, उनके लिए जो है 3,000 रुपया किसान पेंशन लागू योजना किया जाए। प्रदेश सरकार जब माननीय अखिलेश यादव उन्होंने समाजवादी पेंशन लागू की थी, उसको खत्म कर दिया गया मानो, तो उससे लोग हताश हैं। तो हमारी केंद्र सरकार से मांगे कि प्रति किसान 3,000 रुपया मासिक उनको देने की कृपा की जाए। धन्यवाद। 0 आवर में विषय प्रस्ताव कर सकते, सुझाव दे सकते और गवर्नमेंट से मांग कर सकते। सरकार के ऊपर आरोप करे, कोई रिप्लाई करेगा नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप करे, कोई रिप्लाई करेगा नहीं। ये आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जनरल। और कुछ लोग कहते हैं सर आप वो स्टेट के बारे में यहाँ परमिशन क्यों दिया, और कुछ लोग कहते हैं सर स्टेट वी आर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसलिए आई हैव टू बैलेंस इट। बट ओनली थिंग इज प्लीज the purpose is to highlight an issue, burning issue to the notice of the government. Discussion is different. A 0 hour is different. Please understand that. Shri Saroj Pandey, नहीं raise करेंगे, आपत्ति नहीं, but reply state नहीं दे पाएगा। श्री सुश्री सरोज पांडे, please. When it comes to our states, you don't want it to be discussed. Somebody says, why are you discussing it? My point is, you can raise. We have to raise because it's a council of states. But same time, you can't make allegation and you won't get reply also. Suroj. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में जिस विषय को आकर्षित करना चाहती हूँ, हमारा देश बहुत गौरवशाली हमारी संस्कृति रही है और इस गौरवशाली संस्कृति को हमने सहेज कर बहुत लंबे समय तक रखा, लेकिन समय के साथ हम उसे धीरे धीरे भूल गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 देशों के समक्ष योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में बदलने की मांग की और संयुक्त राष्ट्र संघ में 90 दिनों में इसे मंजूरी मिली, जो किसी भारत के लिए मेरा ख्याल है सबसे कम समय में इस विषय को मंजूरी मिली है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय को कहना चाहती हूं कि योग जीवन का एक अनिवार्य अंग है। ये हमारे भारत की संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति को जब हमने अपनाया तो इस संघर्षपूर्ण जीवन में अभी का जीवन सभी के लिए आम दिनचर्या के हिसाब से भी बहुत संघर्षपूर्ण है। हमने योग को धीरे धीरे भुला दिया। मैं आपके माध्यम से महोदय इस मांग को करना चाहती हूं सरकार से कि योग को अनिवार्य शिक्षा में शामिल किया जाए। अगर बच्चों को कम उम्र से ही योग की शिक्षा मिलेगी तो आने वाले समय में वो इस संघर्षपूर्ण जीवन का सामना बेहतरी से कर पाएंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व विकास में उनका विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती कहकशन परवीन, एसोसिएट, ऑल दिस पीपल हैव टू सेंड ए स्लिप। कृष्ण जी कहकशन जी नहीं है। डॉक्टर सत्यनारायण जतिया। माननीय सभापति जी, मुझे विषय रखने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अच्छी सड़कों का निर्माण राष्ट्र की समृद्धि का संवाहक है और मुझे ये कहते हुए गौरव है कि हमने पिछले वर्षों में अच्छी सड़कों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया है। जो सड़कें पहले कम चौड़ी थी उसका चौड़ीकरण करने का काम, विस्तार करने का काम भी किया है। इसलिए मैं सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय गडकरी जी को इसके लिए बधाई भी देता हूं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सड़कों पर होने वाले नित्य प्रति के जो दुर्घटना, एक्सीडेंट्स हैं, उसमें सुरक्षा, संरक्षण और सावधानी बरतने के लिए यदि ये नहीं है तो ये सारी सड़कें जिस प्रकार की बनी हुई हैं उसमें गति तो आ जाएगी किंतु उसमें मनुष्य का, जनधन का बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसलिए ये जो सड़कें बन रही हैं उसमें उनकी गति को ठीक प्रकार से नियंत्रित करने के उपाय भी करना चाहिए। मुझे सड़कों के पुनर्निर्माण के बारे में भी अनुभव आया है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो सड़कें बन रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, वहाँ बनाते हुए
अभी बरसात का मौसम आ गया है तो सड़कों के साथ सर्विस लेन होना चाहिए, जिससे कि वो सड़क जो पुरानी है उसको नया बनाने के साथ साथ वो जो बाकी का आवागमन है उससे हो सके, परंतु वो अच्छी बनती नहीं है। उसके कारण आवागमन बाधित होता है। बम्बे आगरा रोड में अभी देवास से लेकर ब्यावरा तक सड़क बन रही है, किंतु उसकी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और वहाँ पर वो सर्विस लेन बनना चाहिए। इसी प्रकार से भोपाल से नागपुर का सड़क बन रहा है, वहाँ भी ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारे स्टेट हाईवे जो पहले राजमार्ग में, राष्ट्रीय राजमार्ग में बदल दिए गए थे, अब वो वहाँ पर वो जो SH-27 है, उज्जैन से आगर सोयत वाला जो सड़क है, उस पर नित्य प्रति घटनाएं होती, दुर्घटनाएं होती रहती, लोग मरते रहते हैं क्योंकि उसकी चौड़ाई कम है। 5.5 मीटर की चौड़ाई पर 2 वाहन आने जाने का काम नहीं कर सकते। तो ऐसे सड़कों को मानक स्तर पर बनाने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा हर दिन लोग मारे जाते रहेंगे। और यदि कोई एक्सीडेंट भी हो गया है तो उनको सहायता पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए, उपचार की त्वरित व्यवस्था करने की भी आवश्यकता होती है, वो भी नहीं होती है। टोल टैक्स जहाँ वसूला जाता है, निश्चित रूप से वहाँ से एम्बुलेंस और सहायता के बारे में और व्यवस्था करने के लिए उपाय भी करना चाहिए। सड़कें चौड़ी बना दी जाती है तो जो वृक्ष पहले होते हैं उनको काट दिए जाते हैं। तो जैसे चौड़ी सड़कें बना रही हैं आप, 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, उसको और विस्तार करना चाहते हैं, तो इतना जगह छोड़ करके वृक्षावली और वृक्ष लगाने, पौधारोपण करने का काम जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये सूनी सड़कें हो जाती है और उसमें से जो हमको समृद्धि और बाकी के विकास की बातें देखने के साथ साथ वनीकरण करना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इन सारी सड़कों की दृष्टि से जो निर्माण हो रहा है, धन्यवाद, उसमें वो सावधानी बरतते हुए सारा काम मानस रंजन बुरिया, धन्यवाद। स्लिप भेजना। श्री मानस रंजन बुरिया। Sir, I want to raise one important issue through you, sir, to attract the attention of the Honorable Railway Minister. Sir, in our state, Kharagpur rail town is called Mini India. There, 30% of the Telugu people resides. Tamil, Karnataki, Malayalis, Odisha, Bihar, Chhattisgarh, UP. It's really mini India, Bengal, Assam. And it is one of the very important rail town, longest railway platform in India, Kharagpur. Very unfortunately, sir, recently, the water is not properly served to the railway quarters, railway basti area, and nearby adjoining areas. Sir, there is a powerful municipality working in Kharagpur town, elected body. Several times that municipal authority approached the Divisional Railway Authority of Kharagpur, including Southeastern Railway headquarters at Garden Ridge, that kindly allow us to work with, along with railway administration. They wanted to extend their full cooperative hands for construction of the roads in the Basti area, to provide the drinking water facilities, for lighting and sewerage system. Sir, recently a report came that the sweepers who are in charge of the cleaning of the areas do not have the latrine of their own. Such thing should be intervened by the Honorable Railway Minister, and I want to appeal through you, sir. It is my earnest appeal to the Railway Ministry that they should send a high-powered delegation or administrative team to the Kharagpur area and find out the provisions whether the local railway authority can work along with the Kharagpur municipality in a positive mood to uphold the demands of the railway staffs, workers and the people living in the Basti area particularly. And it can be a beautiful system if there is a MOU is signed in between the Kharagpur Railway Authority and the municipal authority. Then all the problems can be solved with the help of the Railway Ministry and the state government. This is my appeal through you, Thank sir, you, to Vinay the ji. Railway Minister. श्री विजय गोयल। सर, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 370 साल पुराना शहर चांदनी चौक, ऐतिहासिक शहर, हेरिटेज सिटी मर रहा है। चांदनी चौक इज डाइंग और हम सब लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। आप इसको वॉल सिटी कहिए, शाहजहानाबाद कहिए, पुरानी दिल्ली कहिए या चांदनी चौक कहिए। चांदनी चौक जाना जाता है
अपने खान पान के लिए, नटराज के बल्ले हों, परांठे वाली गली के परांठे हों या फिर ज्ञानी की कुल्फी हो, इसके लिए अपने रहन सहन के लिए, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। आज चांदनी चौक के अंदर इतनी ज़्यादा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जितनी हज़ारों हवेलियां हैं, एक एक करके हवेली टूट रही है। दिल्ली सरकार, शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड, ASI या जो भी निकाय हैं वो चांदनी चौक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर इतनी मोटी मोटी तारें हैं कि नीचे धूप नहीं आती हैं। सीवर की जो लाइनें हैं वो बैठ चुकी हैं। गलियों के अंदर एनक्रोचमेंट है। ग्रीडी जो बिल्डर्स हैं उन्होंने सब हवेलियों को तोड़ तोड़ के उनके छज्जों पर कब्जे कर लिए हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर लोगों को नहीं पता चलेगा ये गंगा जमनी की कैसी तहजीब की एक नगरी थी, जिसके अंदर जैन मंदिर है सबसे पहले, फिर गौरी शंकर मंदिर है, उसके बाद गुरुद्वारा शीशगंज है, फिर बैप्टिस्ट चर्च है, फिर आर्य समाज मंदिर है, फिर फतेहपुरी मस्जिद है। सारे धर्म के लोग वहां पर हैं, पर अभी कुछ भी नहीं किया जा रहा। मैं सर मांग करना चाहता हूं कि चांदनी चौक की सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाए। वो अथॉरिटी जिसके पास इंडिपेंडेंट पावर होनी चाहिए, जिसको DDA के पास, MCD के पास, ASI के पास, दिल्ली सरकार के पास जाना नहीं पड़े। सर ये जितने भी निकाय थे इन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे चांदनी चौक पूरा एक स्लम होगा। उसकी हर बिल्डिंग का एक सर्वे होना चाहिए, क्योंकि आधी से ज्यादा बिल्डिंगों की हालत ये हो गई है कि वो जर्जर अवस्था में है, कभी भी उनकी दुर्घटना हो सकती है। पर खेद की बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो कनॉट प्लेस का एरिया था उसमें तो 1000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, पर कपिल सिब्बल जी यहां बैठे हैं तो उस समय ये MP थे। चांदनी चौक के ऊपर एक भी पैसा उन हवेलियों को बचाने के लिए लगाया नहीं गया। अभी हमने एक हवेली रिस्टोर की है, पर हम ये कह सकते हैं कि इतनी कठिनाइयां हैं चांदनी चौक के अंदर रिस्टोरेशन के अंदर भी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। और ना दिल्ली सरकार ने, शाहजहानाबाद बोर्ड ने कानून तो बहुत पास किए हैं कि हम ये रियायतें, ये कंसेशन देंगे, किंतु उसमें से एक भी लागू नहीं किया। What is your suggestion? सर अथॉरिटी बनना चाहिए। हाँ बस अथॉरिटी बनना चाहिए। बीच में क्यों सरकार के ऊपर आलोचना करे तो फिर वो लोग हंगामा करेंगे और समस्या का समाधान नहीं होगा। श्री KTS तुलसी, you associate with Vijay Goyal. Okay. Thank you, sir. I want to raise an important issue of crisis in the real estate sector because it directly impacts the dream of crores of poor Indians whose life can change only if they have a roof over their head. And the funds flow from the non-banking finance companies has starved the real estate sector and is drying it up further. The NBFCs, that is non-banking financial companies, share of the outstanding credit to the developers rose from 36% to 58%, and now they are refusing to fund any. The IL&FS crisis of September 2018 has been a major contributor in this crisis. The funding of the real estate sector has been reduced by 80% since September 2018. The banks have refused to lend money to the real estate projects, and the outstanding credits, and they are bleeding because the companies asking for credit are having only bleeding balance sheets. The NPA scare has led to a construction activity to a virtual halt. Real estate sector is also the largest employment generating sector, and if there is no real estate activity in the country, it directly impacts millions of people becoming unemployed. I only hope, sir, that the government will be able to find a solution to this What is collapsing. the solution you are suggesting? Pardon me, Lord. What is the solution you are suggesting? I am suggesting that the government must take steps to ensure that credit is available. In the absence of credit, there can be no real estate activity, and also employment is deprived of the poor artisans, masons, laborers, daily wagers. They are the ones who are deprived of their livelihood. So it's a very vital sector. Its collapse will also collapse Indian economy. Thank you, sir. Credit to the builder or credit to the consumer? No, credit
Credit to the builders to build, because at the moment all Tulsi ji, you know what is happening around Delhi and some parts of Uttar Pradesh, and how the Supreme Court has to intervene in this matter. We have to discuss it in a larger perception, of course, I agree, but at the same time, we are all aware of what is happening. Sri Kirodimal Meena, Dr. Kirodimal Meena. माननीय सभापति जी, आदिवासियों के हित में केंद्र सरकार 2005 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाई, जो 2006 में लागू हुआ, और राजस्थान में 36,000 आदिवासी परिवार ऐसे हैं जो अपने दावे सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर सके, उनके दावे निरस्त कर दिए गए। इस प्रकार से देश भर में करीब 11 लाख आदिवासियों के दावे निरस्त हुए हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि जो आदिवासी अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर सके उनको जंगल से बेदखल किया जाए। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और स्टे ले आए, और देश के आदिवासी इलाके की तो मेरे जानकारी नहीं है, लेकिन राजस्थान के आदिवासी इलाकों में फॉरेस्ट के अधिकारी उनके जबरन घर उजाड़ रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं, पलायन की स्थिति पैदा हो गई है, भूखमरी है, और सरकारी योजनाओं ने दम तोड़ दिया है। इसलिए वहाँ पर एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। सभापति महोदय, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के 8-10 गांव के आंकड़े हैं जहां के आदिवासी अपने बच्चों को पेट पालन करने के लिए गडरियों के यहां गिरवे रख रहे हैं, 1,500 से 2,000 रुपए में गिरवे रख रहे हैं। साल भर का 30,000 रुपए अपने 10 साल से 12 साल के बच्चे को गिरवी रखना, यह अपने आप में लानत है सरकार के लिए। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, बांसवाड़ा जिले के थाना खमेरा में एक एफआईआर दर्ज हुई है 176/2019 जेजे एक्ट में, और मुस्तगिस खुद इसमें पुलिस का हेड कांस्टेबल है और आरोपी भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। सभापति महोदय, ये बात सही है कि ये मामला स्टेट का है, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बहुत स्कीम राज्यों में चल रही है। तो मैं ऐसे में जब आदिवासी अपना पेट पालन करने के लिए बच्चों को बेच रहे हैं, एक तरह से गिरवे रख रहे हैं, वो भी 10-12 साल के बच्चों को, ये बड़ी पैथेटिक कंडीशन है। और ये देश के अखबार दैनिक भास्कर में भी छपा, और देश का प्रोमिनेंट जो अखबार राजस्थान पत्रिका उसमें भी छपा। प्लीज गिरवे रखना, आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। 4 मिनट टाइम है। सभापति महोदय, गिरवे रखने का प्रमाण है खुद पुलिस, 4 सेकंड, खुद पुलिस। थैंक यू किरोड़मल जी, थैंक यू वेरी मच। श्री एक उसके बाद श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद। नहीं, हो गया आपका सवाल, रिकॉर्ड नहीं हो रहे ना। देश भर में पिछले दिनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने की घटनाएं सामने आई हैं मान्यवर। कहीं पर गोडसे की जिंदाबाद लगाकर अपमानित किया जा रहा है, कहीं पर मान्यवर गांधी जी की फोटो पर गोली चलाकर नीचे ब्लड गिरा के अपमानित किया जा रहा है। और अभी एक मामला मान्यवर सामने आया है जिससे हम सबका और पूरे देशवासियों का सर शर्म से झुक जाएगा। शराब की बोतल पर माका ब्रेवरी नाम की एक कंपनी, जो इजराइल की कंपनी है, उसने शराब की बोतल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो लगा दी है मान्यवर। और इसकी शिकायत एबी जोस नाम के एक व्यक्ति, जो गांधी मेमोरियल फाउंडेशन केरला के अध्यक्ष हैं मान्यवर, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक चेहरा पूरी दुनिया में जो हम बनाते हैं अहिंसा के पुजारी के तौर पर, आज
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने जीवन भर शराब का विरोध किया मान्यवर, नशाबंदी के खिलाफ जीवन भर रहे मान्यवर, उनके चेहरे को एक शराब की बोतल पर लगाया जा रहा है। और जो लगाने वाला व्यक्ति है अमित सिमोनी, इसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है hipstory.com। उस वेबसाइट पर गूगल्स पहन के और विकृत तरीके से गांधी जी की फोटो भी लगाई गई है मान्यवर। मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन शराब की बोतलों को और इस कंपनी पे रोक लगाने का, और जो बोतलें बाजार में हैं गांधी जी की तस्वीर के साथ, उन बोतलों को हटाने का प्रयास करें, अपनी ओर से कोशिश करें। मैं यही अनुरोध और विनती आपके माध्यम से। प्लीज, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, मामला गंभीर है। आपका नहीं, आपका नहीं, बाकी आपको बुला रहा हूं मैं, बाकी लोगों को कह रहा हूं थोड़ा शांति बैठे तो आप बोले, आप प्लीज बोलिए। 150वीं सालगिरह बर्थ एनिवर्सरी हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मना रहे हैं, और इस साल इस तरह की घटना अगर देखने में आएगी तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मैं माननीय चेयरमैन साहब ने आपने सीरियसली इसको लिया है, आप डायरेक्शन यहाँ दीजिए गवर्नमेंट को कि इस तरह की कंपनी को या तो बंद करना चाहिए, और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही एंट्री करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए, और पूरे देश में इस तरह की ये चित्र नहीं आना चाहिए। इस तरह लीडर ऑफ द हाउस जयशंकर जी, प्लीज टेक नोट ऑफ द सेम एंड देन try to take appropriate immediate action. If necessary, you can call the member and take the details also from him. Yeah. Yes. Leader of the house is there. He want to respond. I am permitting him. I am permitting. माननीय सभापति महोदय, माननीय मिश्रा जी ने और अन्य कुछ सांसदों ने एक विषय की ओर ध्यान दिलाया है यहाँ, और उसमें ये कहा गया है कि 17 ओबीसी वर्ग की जातियों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एससी के सर्टिफिकेट देना प्रारंभ कर दिए हैं। ये कदापि उचित नहीं है। ये संसद का अधिकार है कि किसी एससी या एसटी या ओबीसी की जाति को किसी वर्ग से हटा करके किसी वर्ग में सम्मिलित करना है, ये संसद का अधिकार है। पहले भी ये मामले 2-3 बार संसद में आए, परंतु संसद की सहमति नहीं हो सकी। अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन जातियों को ओबीसी से एससी में मिलाना चाहती है, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम विचार करेंगे, परंतु अभी जो आदेश उन्होंने जारी किया है वो उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के आदेश के आधार पर किसी का प्रमाण पत्र न बनाए, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाएगा और वो निरस्त होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद श्री। ये आप प्रदेश सरकार से को सलाह दीजिए आपके पास भेजने के लिए, और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के हिसाब से जो भी करना करें। जी श्री